મોડર્ન મેડિકલ સાયન્સમાં આમ કહેવામાં આવે છે કે તમને કમરમાં દર્દ હતું છે ને તો હશે, એટલે કોઈ પણ બાકી નહીં રહે. કમરનું દુખાવો બધાને યા તો થયું છે યા તો છે અથવા થવાનું છે, પણ જે યોગ કરશે એ જ કમર દર્દથી બચી શકે છે. નહીતર આ કમરમાં દર્દ બધાને થાય. એના માટે આજે બધા લગભગ 20 પ્રકારના આ અભ્યાસો છે. આ કરતાં કરતાં કમર દર્દ કેમ મટે છે એના માટે ત્રયોદશાંગ, ગોલચંદ્ર પ્રભાવટી, અશ્વશિલા, ગળો એ બધું અમે આપીએ છીએ. પીડાનીલ ગોલ્ડ, ઓર્થોગ્રીટ આ બધું તો આપીએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે આ યોગાભ્યાસ, ઊભો રહેવાનો, બેસવાનો, સોવાનો સહી રીતે, નહીતર એનાથી પણ કમરમાં દુખાવો થાય છે. વધારે ખાટું ખાવાથી, વધારે ઉપવાસથી, વધારે ઉપવાસથી, વધારે વાસનાથી અને કોન્સ્ટિપેશનથી, ચિંતાથી, એનાથી પણ વાત વધે છે. આ તાડાસન, પછી તિર્યક તાડાસન, 2-3 તો અમારી ગુજરાતી જ બહેનો છે. તમને શું ફાયદો થયો? હાથ આમ સીધા રાખો, સીધે હાથ રાખો, હા કરો, સબ કરતે રહો. મેં બાબા ઓપરેશન કરાયું એને 19 સાલ થયા. 19 સાલ થયા, પણ જે દવાખાનામાંથી નીકળીને ત્યાંથી એક દિવસ સારું નથી થયું. અને પ્રાણાયામ 15 વર્ષ ત્યાં કરી છે. એના હિસાબે હું અત્યારે ઊભી રહું છું, અહીં બેસી શકું છું. ઘરે તો 1 કલાક નહોતી બેસી શકતી. આજે 6 દિવસથી આવી છું તો બધા પ્રાણાયામ હું જ્યારે ડોક્ટર જાય ત્યારે જાઉં છું. 5 કલાક બેસી શકું છું. 5 કલાક સવારે 4 વાગે આવી જાઉં, બેસું છું. આમ થોડી વાર પણ નહીં બેસી, નહીં અડધી કલાક માં બેસું ઘરે. એ તકિયા રખ કર બેસું. વધારે નહીં બેસાય. અત્યારે 5 કલાક, હા એ તકિયા રખ કર બેસું છું. અને અત્યારે તું સારી 5 કલાક બેઠું છું. નીંદર નહીં આવતી, રાત દિવસ પગ તોડતા હતા. હા દુખતા હતા. ઊંઘ નહીં આવે. 2 વાગે ઊંઘ આવે. અભી તો મેં ઘરે જાઉં, સીધી સુઈ જાઉં, પેટમાં જાય. પહેલે એને ઊંઘ નથી આવતી. ઊંઘ ને સુઈ જાય. એ ઓપરેશન કર્યું કમરનું તો કેટલા દર્દ આવ્યા. કોલેસ્ટ્રોલ આવ્યો, બીપી આવ્યું, ડાયાબિટીસ આવ્યું. 300 ડાયાબિટીસ હતું, કાલ મેં આપ્યું 120 થઈ ગયું. ક્યા બાત હે. નહીં દવા લીયા નહીં કઈ. બીપી નોર્મલ. ચાલો શું નામ છે તારું? ભાનુબેન. ભાનુબેન તો ભાનુ એટલે સૂર્ય ઉદય થઈ ગયો તમારે તો. તો આ તાડાસન, તિર્યક તાડાસન અને આ અભ્યાસ કરજો આમ. અને બીજી બેન ને આપજો પાછળ. ઘણા બધાને ઘણો જાતનો ફાયદો થાય છે. જી હા 15 વર્ષથી અમારે કમરમાં દર્દ, કમર સાઈટી કાય પગ આખો ફાટતો હતો. હા હા તો મેં દવા કોઈ એલોપેથી ની દવા જ નથી લીધી. પછી શું કર્યું? આ પ્રાણાયામ ના આસન બધાય કરું. આનાથી શરૂ થઈ ગયું. હા. શું નામ તારું? ભારતીબેન. 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 હા જે હાવ મળતું નથી એનું કે શું કરવું અમારે? હાવ પૂરું નથી મટી જતું, દુખે થોડું થોડું. અત્યારે પૂરું મટી જશે. પેડાનિલ ગોલ્ડ, ઓર્થોગ્રીટ સતત ખાવજો. હા. અને આ અભ્યાસ શું છે? ગેસ બહુ જ બનતી છે, ગેસ. ચલો બેસો. આ તો ઊભા થઈને આમ બેસીને પણ કરી શકાય. વજ્રાસનમાં, સુખાસનમાં બધા આમ કરજો. જેને ગેસ બહુ થાય ને એ મેથીના દાણા સાંજે પાણીમાં પલાળીને એનો પાણી પી જવાનું અને એ દાણાને અંકુરિત કરીને ખાઈ જવાનું. એનાથી ગેસ મટે. જે પહેલું ગ્રાસ હોય ને ખાવામાં, पहला ग्रास जो होता है उसमें 2-3 कली लहसुन की गाय के घी में भून लो, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा त्रिकुटा डाल करके या गैसर डाल करके खा जाओ तो गैस नहीं बनती. पहले ग्रास के साथ लहसुन. ओ એને મટાડી દીધી. ચાલો બહુ સરસ. આમ કરજો. અને જીરા, ધનિયા અને વરિયાળી, સોમ એ રાત્રે પાણીમાં પલાળીને સવારે પીજો. એનાથી મટે. સર્વકલ્પથી ગેસ મટે. ચાલો બીજાને આપો. गोल गोल घुमाओ ऐसे. ये सूक्ष्म है. फिर थोड़ा आसन. मेरा नाम सुधा है. मैं 10 साल से. हाँ चालू है. मैं 10 साल से सर्वाइकल और कमर दर्द और घुटने और माइग्रेन से पीड़ित थी. मेरी फ्रेंड आती थी नोएडा से, वो मुझे लेके आई है दिल्ली से. हाँ. तो अब 4 दिन में ही मेरी कमर में और घुटनों में आराम है बहुत ज्यादा. 4 ही दिन में 15 तारीख को मैं आई और मेरा रात का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है. कल मेरे बहुत ज्यादा सिर में दर्द था, मतलब अटैक सा उठता है मेरे माइग्रेन का. और मैं रिसेप्शन पे गई, मैंने वहाँ बोला तो रात को ट्रीटमेंट के लिए 2 लड़कियां आई. उन्होंने मतलब मेरा सिर का दर्द बिना दवाई के जाता ही नहीं था.
और उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मैं बिना दवाई के ही सो गई रात। उन्होंने हाँ जी एक्यूप्रेशर और मसाज कर हाँ मसाज किया उन्होंने, और मेरे रात का एक्सपीरियंस तो इतना बढ़िया है स्वामी जी, मैं कभी बिना दवाई के लिए बिना सिर का दर्द ठीक नहीं होता था। ऐसे अपने पति से करवा लेना घर में। हाँ जी बिना दवाई के कभी ठीक ही नहीं होता था मेरा सिर का दर्द। चलो बहुत अच्छा, रात का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मेरा ये। हाँ इसको माता जी को देना है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है तगड़ी वाली माता जी। ओम स्वामी जी, मैं एमपी से आई हूँ, धर्मपुरी गांव से। धर्मपुरी से? हाँ। बड़ा सुंदर नाम तुम्हारे गांव का। तो नर्मदा जी भी है वहीं पर हम। और मेरा वजन थी 1 हफ्ते में 2 किलो कम हुआ, और एलर्जी की जो दवाई लेती थी रात को सोती वक्त जो भी मेरे बंद हो गई है। और मतलब कमर का दर्द और साइटिका की नस जो खिंचाती थी वो भी 1 हफ्ते में बंद हो गई मेरी। अच्छा ये तो बहुत अच्छा लगा यहाँ की थेरेपी, आप बहुत अच्छी है, थेरेपी आप बहुत अच्छी करवाते हैं। तभी बहुत हाँ। देर से तू राजी हो रखी है। मैं सोचा इस माता को क्या मिल गया ऐसे हो और रहा है, जैसे घर स्टीम में में पोता हो स्टीम गया। भाप पे बहुत अच्छी लगी, स्टीम भाप बहुत अच्छी लगी। अब मैं अच्छा नहीं लगा? नहीं आपके यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा कि बाबा जी कैसे मैनेज करते होंगे इतनी अच्छी व्यवस्था। हाँ बहुत आशीर्वाद उसको देना, दूसरी बहन जी को। ओम स्वामी जी। जी बहन जी। स्वामी जी मेरे को कमर में थोड़ा साइड में पेन था, वो ठीक हो गया। वेरिकोज वेन साइड में दर्द था? साइड में। हाँ वो सियाटिका का होता है, वो नर्व दबती है हाँ रीढ़ की हड्डी से और दर्द करती है। और वेरिकोज वेन थी, लीच लगवाई 2 दिन में, अब बिल्कुल दर्द नहीं है, आराम से बैठ रही। लीच लगवाई? हाँ जी। अब स्वामी जी मेरी बहन बिल्कुल ठीक होके गई, लेकिन खड़ी हुई होगी 10 मिनट में, वो कहती है मैं पहाड़ों पे चल रही हूँ। मैं कल पूरा दिन यहाँ घूमी हूँ। अंग्रेजी में लीच थेरापी बोलते हैं तो राजी होते हैं, जोक सुनते हैं। नहीं बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी स्वामी चीज़ जी, है ना? बहुत अच्छी, इसको बिल्कुल भी देना, दर्द इसकी नहीं बहन हुआ। को क्या हुआ था इसको वापस देना। हाँ स्वामी जी मेरे साथ ना मेरी बहन आई थी छोटी, उसको ना बहुत इतना था दर्द था, वो 10 मिनट किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी। चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ फिर उसको ना यहाँ पे वो लीच थेरेपी के लिए आई स्पेशल, उसने सुन रखा था कि वहीं पे मेरे को लीच थेरेपी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, तो वो ये लीच थेरेपी करके गई है। तरीका होता है ऐसे नहीं कि कहीं पर भी लगा दिया। हाँ उसके बकायदा ब्लड टेस्ट हुए सारे, तब हाँ। लीच लगी है। और फिर उसको अभी वो यहाँ से घूम के गई है पहाड़ों पर, 1 हफ्ते पहले वो मेरे साथ। अब दूसरी ठीक बहन हो है, गई? हाँ कह रही मैं पहाड़ों पे, वो सबको बताती है कि मैं जहाँ 10 मिनट रसोई में खड़ी नहीं हो पाती थी, आज मैं पहाड़ों पे घूम के गई हूँ। ये लो, ये तो कमाल हो गया। फिर मैंने दूसरी बहन को बुला लिया, उसको भी बहुत परेशानी थी, वो आपसे मिली थी, शारदा। सारा कुंबा यहीं आ रहा है। शारदा सिंगल जो 22 साल से, जिसने आपको बताया था ना कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसने ऑपरेशन नहीं कराया और वो ठीक हो गई। हाँ शायद वो हरियाणा वाली। हरियाणा वाली नहीं, दिल्ली वाली। अच्छा दिल्ली वाली है वो? हाँ हाँ हाँ, सब हाँ। ज्ञानानंद जी की तो मैं छोरी। उसकी बहन हूँ, मैं भी ज्ञानानंद जी की शिष्य हूँ। हम दोनों सारी बहनें ज्ञानानंद जी की शिष्य हैं। चलो और बहुत सारी अच्छा। बहनें और आना ज्ञानानंद जी चाहती मेरे मित्र हैं। हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ, फतेहपुर तो क्षेत्र में हमारे मिलते थे। साथ ले हो। चलो आप पिछली वाली को देना। अपने अपने लाभ बताने में इतनी उत्सुक रहती है महिलाएं कि मेरे को ये फायदा हो गया तो और भी फायदा उठा। मेरे भी 5 साल से कमर में गैप, हड्डी घुटने में। कहाँ से आई हो? इधर इंदौर से आई। हाँ अब ठीक हो गया? हाँ अभी 2-3 दिन से पोटली से एक मालिश से ठीक लग रहा है। नींद की बीमारी थी 20 साल से, मेरे को गोलियां खाती हूँ, 2 दिन से बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ योगा में भी नींद आ रही थी। वो पिछला कोटा पूरा हो रहा है। हाँ और एक मेरी बहन है, अभी साथ में आए हम 3 लोग, बांसवाड़ा से आई है, तो वो आते ही यहाँ पे गिर गई, मोच आ गई, तो अस्थमा उसको, आ ही नहीं पा रही आपके पास, कमरे वो भी में ही। ठीक हो जाएगी। उसको ज्यादा बोलो तकलीफ मोच होगी। भी ठीक कर देंगे उसकी। हाँ उसका टाइम लेना है आपसे, वो आ नहीं सकती है, व्हील चेयर पे उसका लाना। मोच ठीक कर देंगे। हमारे एक बालक है प्रियांशु, उसकी हड्डी उड्डी सेट कर देगा। वो 20 साल से अस्थमा से लड़ रही है, तो नाक बंद हो गया, आपसे मिलने आई है आज। अरे भाई अस्थमा तो सारी धरती का हमने ठीक तो कर आज दिया। कहाँ मिला है उसको? यहीं मिलूंगा, कोई आसमान में थोड़ी मिलूंगा। नहीं वहीं टाइम लेना पड़ेगा ना, कहाँ पे लाऊं? व्हील चेयर। योग भवन में, योग भवन में कितनी बजे? दोपहर से 12 से 3 के बीच में मिलता है, टाइम बता देंगे ना। ठीक है हाँ। चलो सब भुजंगासन करो। स्वामी जी ओम। मकरासन, भुजंगासन, ओम स्वामी जी, सलभासन, मुझे 6 महीने पहले स्पाइन का दर्द हुआ था, धनुरासन करो। बहुत ज्यादा। हाँ सुनाओ सुनाओ, आप आराम से बैठो। हाँ, हाँ हाँ। तेरी बहन है? हाँ, हम दोनों बहनें। छोटी है वो? मुझे 6 महीने पहले स्पाइन का बहुत प्रॉब्लम था, रात को सोती थी मैं
तो सो नहीं पाती थी, इतना मुझे दर्द होता था कि अभी जैसे पूरा इधर चेस्ट तक उसका पेन होता था। फिर मैंने पीड़ानील और ऑर्थोग्रिड ली और पीड़ांतक तेल की मालिश की और अभी 3 दिन से यहाँ पे ये पोटली सेक और मसाज से मुझे आराम लग रहा है। कितनी उम्र है? मेरी 52 साल। 52 साल की उम्र है। कमर में दर्द था और मेरा वजन कम हो रहा है स्वामी जी, बहुत वो वेट लॉस हो रहा है। इम्यूनोग्रिड ले लेना, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत वेट लॉस हो रहा है मेरा। अभी बीच वाली बहन जी को देना। हाँ देंगे, सबके पास आएगा। ओम बाबा जी, हाँ मेरे रीढ़ के हड्डी में 15 सालों से दर्द हुआ था। ऑपरेशन हुआ था 15 सालों से। 15 साल से? 15 साल। 30 साल की तो खुद ही लग रही है तू। नहीं, 46 का 46 से हूँ। वाल्टियर सब कुछ, कितना डॉक्टर के पास गए तो अब डॉक्टरों ने बोला कि अब दवाई नहीं। उड़ीसा से आई हो क्या? उड़ीसा से। हाँ। हाँ, वही मिल रही थी 15 सालों से। जो डॉक्टरों ने बोला आप दवाई नहीं खाओ, किडनी लीवर आपका खराब हो जाएगा। हाँ ये ठीक डॉक्टर था, हाँ, किडनी जिसने लीवर बता दिया कि लीवर किडनी खराब हो गया। अब कैसा है तेरे को? एक्सरसाइज करो, अभी ठीक है। ठीक है। हाँ, गैस भी ठीक हुआ, सिर दर्द भी ठीक हुआ। चल। सांस अंदर नहीं ले पा रही हूँ 5 दिन से। सांस ऐसे लेने से ये घबराहट होता है, इतना बड़ा लगता है। श्वास आ रही, एक एक कैप्सूल शहद से खा लेना। 5 दिन हुआ है दीदी। श्वास आ रही कैप्सूल ले लेना और दिव्य पेय पी लेना दिन भर। चलो अभी कमर के अभ्यास बाकी है। मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटितानासन करो सब। और भी पूछ लेते, जिस जिसको जो फायदा हुआ बताते रहो भाई, करने से होगा सब। स्वामी जी प्रणाम। था बधु। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। ये घुटने में ये कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मैं 8 दिन से आई हुई हूँ, इसे दर्द आराम है पोटली और इसे मसाज से। इसके चलते मेरे ये बाएं घुटने में सूजन आ गई है और पानी भर गया है। ये डॉक्टर ने, बहुत दर्द था, 3 महीने से बेड पे थी, तो उन्होंने पानी निकाल दिया 2 बार। फिर उसके बाद ये घुटने एकदम लाचार हो गए, मैं चल नहीं सकती हूँ, न बैठ सकती हूँ अभी। लेकिन यहाँ आई हूँ तो चल पा रही हूँ। और ये थी अपना काम ये पानी निकालने वाला भी बहुत बड़ा कबाड़ा हो रखा आजकल। घुटने का पानी, कमर का पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ का पानी निकाल देते हैं और उससे अंदर और उपद्रव होने लगता है। शरीर को सक्षम बनाओ, शरीर ने सक्षम बनाओ कि जेनाથી पानी अंदर सुखाई जाए। आ पानी निकालવાનો, ऑपरेशन करવાનો, बात दवा આપવાનો આ બહુ ખતરનાક ખેલ છે। એનાથી જ અમે બચાવીએ છીએ। યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા થકી મેડિકેટેડ વોટર, મેડિકેટેડ ફૂડ અને ડિફરન્ટ જે થેરાપી છે એનાથી કરો। मैं हिमाचल से आई हूँ। मैं आपको 2003 से फॉलो कर रही हूँ स्वामी जी। 2003 थी? हाँ ओह, 2003 थी फॉलो करे। प्रोग्राम आता था टीवी पे, तो मैं तब से देखती हूँ। 7 बजे के करीब आता था आपका प्रोग्राम। हाँ, ये तो 20 वर्ष पहले मैंने शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी स्वामी। 21 वर्ष पहले। हाँ जी, मैं तब से आपके साथ बस योगा में लगी हुई हूँ। और मेरी बैक में बहुत पेन था स्वामी जी, इतना पेन था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, सो भी नहीं सकती थी। पर अब मैं यहाँ पे आई हूँ 4 दिन से। 2 दिन तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, पर अब मुझे 2 दिन से अच्छा रिलीफ लग रहा है। हाँ, समय लग जाता है, थोड़ा वक्त लागे ना। हाँ जी, शुरुआत में थोड़ो 2-4 दिवस लागे तो घबरावानो नहीं। हाँ जी। शुरुआत में फायदो नहीं तो बीपी और शुगर भी है स्वामी जी। सभी कहते हैं तू योगा करती है पर तुझे क्यों है? तो मैंने कहा मैं जी रही हूँ, तुम यही बहुत है मेरे लिए। और मैंने यहाँ के कोई दवाई नहीं खाई है अभी तक, न कुछ खाया है। चलो और अच्छा हो जाए। हाँ लगे रहे। धन्यवाद स्वामी। देखो जेने कमर में दर्द हो ना, सिर नहीं उचकवानो। ओम स्वामी जी, मैं नारनौल से आई हूँ। मेरा नाम सरोज है। मैं 2004 से स्वामी जी आपको फॉलो करती हूँ। ओम स्वामी जी, मैं बहुत जोड़ जोड़ के पैसे लाई आपको दान देने के लिए। प्लीज आप स्वामी जी मुझे मिलना। स्वामी जी, मैं बहुत प्रॉब्लम थी मैंने डिप्रेशन की दवाई ली थी। मुझे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती। मेरे पहले पेट में दर्द था तो मैंने जयपुर से दवाई ली थी। जयपुर वालों ने मेरे को ऐसे दवा दी कि मेरी नींद उड़ गई। मैं सोई नहीं, 9 महीने तक खाया नहीं, सोई नहीं, भूख नहीं लगी मुझे। फिर मैं आपको फॉलो करती रहती तो मैंने कहा कि मैं बाबा का योगा करूंगी, उससे ठीक होंगी।
हाँ। तो बाबा मैंने आपका योगा किया, मैं ठीक हुई। अब मुझे कमजोरी बाबा, मुझे बुखार आ जाता, थोड़ा शुगर, कल से मैंने थेरेपी ली, उसी से मेरे बुखार आ रहा है बाबा जी। और आपकी सेवा में मैंने मेरे बेटा भी छोड़ रखा है, नितिन योगाचार्य कायरोप्रैक्टिक। उसने कहा मम्मी आप आओ एक बार। मेरी 29 अप्रैल की वो बुकिंग थी बाबा जी, फिर मेरा हुआ ही नहीं। मैं 10 साल से आपको सोच रही थी, मैं मेरे बाबा के पास जाऊंगी, मिलूंगी, मुझे बहुत इच्छा थी बाबा जी, मैं आपसे सहयोग देना चाहती हूँ बाबा जी। चलो तब अब ये बुखार और बाबा जी अब हमें झूपड़ी मिले, उसमें पूरी रात मेंढक बोले, मुझे नींद नहीं आई बाबा जी, प्लीज मुझे कमरा दिला दीजिए। मैं बहुत आपकी फैन हूँ बाबा जी, 2004 से बाबा जी। कमरे भर के मिली झोपड़ी बाबा जी पानी भर रहा है उसमें, प्लीज बाबा जी। इसके बगल में मेंढक बोले तो जंगल में तुम आ गए, जगह उनकी थी, ये मेंढकों की जगह, जानवरों की जगह हम आके रहने लगे, बेचारे वो कहा जाएंगे। ठीक है, पहले तो मेंढकों की सेवा कर। तो खैर ना गिलोय पीना, गिलोय कंटिन्यू गिलोय पियो, कैसा ही बुखार हो, गिलोय और ज्वरनाशक क्वाथ। फिर जेने आंतरडामा प्रॉब्लम होए, ये वैनकारी आंतों में प्रॉब्लम है, तो फिर कुटज घनबटी खिला दो, तो कुटज से आंतें बहुत अच्छी हो जाती है। पुनर्नवारिष्ट कुटज घनबटी। हाँ? तो योगाभ्यास में आसन, फिर प्राणायाम, आराम आराम से भस्त्रिका, जोर से नहीं करना इसे, भस्त्रिका कपालभाति जोर से नहीं, आराम आराम से करना, अनुलोम विलोम आराम आराम से करना। और पुरुषों में जिनको विशेष लाभ हुआ है, ये तो थोड़ी सी उम्र का, तेरे को क्या था बेटा? प्रणाम बाबा जी। मैं 2017 में गिर गया था बहुत ज़ोर से, तो उस वजह से मेरा D9 फ्रैक्चर हो गया था। तो तब से लेकर अभी तक कुछ दिन, मतलब अभी तो मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ योग प्राणायाम एक्सरसाइज कर करके। तब मेरी ऐसी हालत थी कि मैं 2 मिनट भी बैठ नहीं पाता था बिना सपोर्ट के। वो लोहे के ब्रेसेस लगते थे तब जाके बैठ पाता था, या फिर सपोर्टिंग वाले चेयर में बैठ पाता था, वरना उसके बैठ ही नहीं पाता था मैं। चलने में दिक्कत हो जाती थी, कुछ करने से, कुछ ज़्यादा कर लेने से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, बहुत पेन होता था। फिर धीरे धीरे योग प्राणायाम आसन एक्सरसाइजेस कर करके अभी इतना है कि मैं 3 घंटे बैठ के योग कर लेता हूँ। अब तो पूरा ठीक हो जाएगा। आसन पूरा करना, नील गोल्ड ऑर्थोग्रिड अश्वशिला थोड़ी दिन लगातार खा लेना जी और बाबा। ये नस नाड़ियों को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्यूनोग्रिड, स्पिरुलिना, ये भी साथ में ले लेना जी बाबा जी। और किसी किसी को ये हड्डी पड्डी कीर्तन करती है ना, तो वो थोड़ा कैल्शियम, विटामिन डी, B12 भी थोड़े दिन खा लेना चाहिए। 1 महीने भर खा लो, बाद में एक मल्टीविटामिन है न्यूट्रिला, सब नेचुरल बना रखा है, डेली एक्टिव है, इसको देना भाई फौजी भाई को। भस्त्रिका कपाल ओम बाबा जी। विलोम करो। बाबा जी मुझे 99 में मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी का एक ट्रैक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरे को कमर में चोट लगी थी। तो उसके बाद में फिर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बहुत दिन तक ट्रीटमेंट कराया और फिजियोथेरेपी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम से कोई रिजॉल्व नहीं मिला। फाइनली फिर मैं लो मेडिकल होकर के फिर आर्मी से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। और उसके बाद फिर मुझे अभी 4 महीने पहले जब मैंने इस पे आस्था पे और इस पे जब देखा, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मुझे बिल्कुल मतलब A to Z में कुछ भी पता नहीं था मेरे को। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने योगा स्टार्ट किया, एक मन में एक विश्वास करके कि हो सकता है इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, मुझे भी हो जाए। और आज अभी ये कंडीशन है कि मैं आधे घंटे 1 घंटे बैठ के योगा कर सकता हूँ, नहीं तो मैं प्लेन फर्श पे मैं 5 मिनट बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाता था। और शीशे में देखने से मुझे लगता था कि एक तरफ से मैं टेढ़ा हो गया हूँ, ऐसा मुझे लगता था, जो कि आज बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्रेश हूँ, एकदम सही हूँ। और कमर दर्द तो बिल्कुल अब है नहीं, अब 0% भी नहीं है मेरे को कमर दर्द, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैसे भी जंप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कितने साल तक रहा है? फौज में सर 20 ईयर्स करीब हो गया सर मेरे को। 20 साल का दर्द खत्म कर दिया, 20 વર્ષનો દર્દ 99 में चोट लगी थी बाबा जी मुझे। આ બધું યોગથી દૂર થાય, કરવું પડે નિષ્ઠા સાથે। યોગાભ્યાસમાં આસન અને પ્રાણાયામ આ બધું કરી લો, એનાથી સ્ટ્રક્ચર બહારનું અને અંદરનું પૂરું સિસ્ટમ, સ્ટ્રક્ચર અને અંદરનું સિસ્ટમ પૂરું સારું થાય। એ ભાઈ સ્વસ્થ થઈ ગયા। બીજાને આપો। बाबा जी मेरा नाम अमित है, ग्वालियर से आया हूँ मैं, मध्य प्रदेश से। लास्ट ईयर भी आया था आपके साथ में, सितंबर में। अनुलोम विलोम सितंबर में आया था। मेरे को क्या है 2019 में रीनल सेल कैंसर हो गया था, तो उसके बाद सर्जरी ऑपरेट हुआ था मेरा। तो उसके बाद से 2020 से मेरे को स्पाइन में पेन होने लग गया था, तब मैं आपके पास यहाँ पे आया था।
तो मतलब इंस्टेंटली 1 वीक में मेरे को आराम मिल गया था लास्ट टाइम भी। अभी भी मैं थोड़ा सा एक दिन फिसल गया था मैं अभी बारिश के टाइम पे, उसकी दिक्कतें फिर होने लग गया था कि स्पाइन इंजरी के कारण पैर पूरा कटा हुआ है पीछे। तो अभी 3 दिन हुए, 3 दिन में आराम है मेरे को। सर वो चोट भी ठीक कर ली? अरे स्पाइन का वो था ना, वो जो फिसली पूरा, थी, वो भी ठीक कर ली? हाँ वो भी सही हो गया मेरे को। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और बाकी नेचुरोपैथी और सारा अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और 3 दिन में 4 किलो वेट कम हो गया। बहुत अच्छा। अगले को देना। ओम बाबा जी, मैं रोहित मंगल, मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। बाबा जी मैं सीए हूँ और मुझे 15 साल से कमर का दर्द है और मैं आलसी भी हूँ, और लॉकडाउन के बाद मैं वहाँ आलसी हो गया था। और लॉकडाउन 1-2 जब आया तो मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने इंडिया टीवी देख के आपका मैंने योगा करा, और बाबा जी 2 महीने में कमर दर्द बिल्कुल सही हो गया मेरा। बहुत हल्का सा रहा है, बाकी खत्म हो गया कमर दर्द। अब दोनों पति पत्नी रोज योग करना? रोज योगा करता हूँ बाबा जी। बाबा जी मैं योगा करता हूँ, मेरा हेडेक हो जाता है मेरे को। धीरे धीरे किया करो जी, बहुत रेग्रेसिवली मत करो, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। अनुलोम विलोम ओम करो। स्वामी जी, मेरे को स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, तो स्लिप डिस्क तो ठीक हो गया, लेकिन अभी मैंने कुछ गलतियां कर दी इस लॉकडाउन के बाद में। घूमने गया, कूदा फानी करी, तो ये हो गया फिर से। और इस बार जो स्लिप डिस्क का पेन हुआ उसके साथ साटिका हो गया। तो जैसा कि आपने मेरे को, यहाँ आया मैं 7 तारीख को, 4 दिन के अंदर अंदर मेरा स्लिप डिस्क का पेन सही हुआ। पंचकर्मा रेगुलर चल रहा है तो मेरा वो पेन ठीक हुआ, लेकिन ये साटिका की वजह से एक नस जो मेरे को परेशान कर रही थी, मैं सीधा नहीं चल पा रहा था, बहुत टेढ़ा हो गया था। तो उस दिन आपने देखा था तेरे को टेढ़ा। हाँ, 16 तारीख के शो में आपने प्रियांशु जी से मिलाया, बोला उनसे करो। आज चौथा दिन है, आज मैं अपने टेंट से लेके भोजनालय तक पैदल चल लेता हूँ। और पहले जब मैं आया था तो चलने का सोचने में भी डर लगता था। आज मैं चल लेता हूँ आराम से, सही है। 95% मेरे को फायदा हो चुका है। 5% भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं अभी भागना चाहता हूँ, तो मैं जिस दिन भागूंगा उस दिन और मजा आ जाएगा मेरे को। तो ये देखो, और ये एंक्लो, एक तो थोड़े थोड़े दर्द है, एंक्लोजिंग वाला बहुत खतरनाक है। तेरा भी ठीक होगा बेटा, समय लगेगा 1 से 2 महीना। 1 वीक में अच्छा होने लगेगा। वैसे तो 3 दिन में तेरे को फायदा हुआ है, 1-2 वीक में और अच्छा होगा, 1-2 महीने में पूरा सीधा हो जाएगा। सुना क्या है अभी तक तूने एंक्लोजिंग के बारे में, क्या सुन रखा है? एक बार होने के बाद ठीक नहीं होता बाबा जी, ऑपरेशन ऐसे ही रहेगा। ऑपरेशन होता है, वो इलाज है। बाकी मेरी मतलब मेरे को उम्मीद तो मतलब है नहीं अभी, मतलब अब आपके यहाँ पे आया हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उम्र मेरी 38 हो गई है, तो अभी टाइम भी कम है। मतलब अभी नहीं, उम्र हो जाए ठीक हो जाता है, उम्मीद रख। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले तुमने तो देखा है, मैंने कितने लड़के सीधे करके। नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से ना प्रियांशु से ये बोला था, उन्होंने पहले मना किया था। बाकी मैं डॉक्टर जैन के साथ गया था तो उन्होंने ओके करवा लिया। प्रियांशु से मैंने एक बार क्लास ली है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है ना। वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे पूरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, બ્રાહ્મણ ગીત, આવા બધા કરવાથી અને નાનકડા ઉપાયોથી તમે મોટી મોટી બીમારીઓને પરાજિત કરી શકો છો। આવી રીતે જેને પણ કમરમાં દુખાવો છે આ બધા યોગ કરજો, આયુર્વેદનો ઉપયોગ કરજો, અને વધારે દુખતો હોય તો આ પીડાનીલ સ્પ્રે છે, પીડાનીલ ઓઇલ છે, પીડાનીલ ઓઇન્ટમેન્ટ છે, આ બધું પણ પ્રયોગ કરજો। એક્યુપ્રેશર કરી લેજો બધા। આ 7 પોઈન્ટો છે, 1 2 3 4 5 6 7, અને આ પણ બહુ જબરદસ્ત છે। છોટી આંગળીની પાછળ અહીંયાથી અને આ અહીંયાથી આ 9 પોઈન્ટો છે, અહીંયાથી આમ અને આમ, આ બધું કરશે પછી એને કોઈ દર્દ નડશે નહીં, થશે નહીં। યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો, અને મારે સાથે સાથે કરતા કરતા જ ઘણા બધા રોગો તમારા મટી જશે। પછી 1 કલાક દરરોજ કરવાનો અભ્યાસ કરજો। 1 કલાક તમે યોગ કરશો, તમારા 24 કલાક સરસ વીતશે।